So my esteemed colleagues and dear students, the day has started and we have to start with our morning assembly. Very good morning to all of you. I repeat, good morning to all of you. Well, wishing is always very useful for everybody. We wish someone, we always leave very good impression on that individual, and we develop warmth in our relations when we wish, and we get blessings from others when we wish. There is nothing that is bad about wishing, and whenever wishing is done, it should always be done very enthusiastically. It should not be done in a cold manner. Wishing is a symbol of warmth. So when wishing is a symbol of warmth, we should not ever wish anyone in a cold manner. Okay? So let's wish in a warm manner. Good morning, dear children. So that is better way of wishing. So dear students, everybody comes to the school every day and brings a bag with him. So in the bag we have notebooks and we have books. Books are our constant companions. Books are there to guide us all. Books are there to help us in our life, and books are there to help us in our examination. Books are there to help us in our career, and books are there to help us in our future. Through books, we can create very good life for ourselves. We can create very good future for ourselves, and we can really contribute to our society, and we can also contribute to the development of our country. Therefore, we need to value books. And therefore, we have very good library in our school. Therefore, we have library period in every class, and children are visiting the library. These children who are sitting in front of you, they also visit library just like any one of you. When they visit library, about them I have been told that they are reading enthusiasts. What are they? Reading enthusiasts. What are they? Reading enthusiasts. Means they are very enthusiastic about reading. Reading को लेकर ये बच्चे बहुत उत्साहित हैं. They go to the library, books are given to them, they read the books with a lot of enthusiasm, they make proper notes, and they also write good reviews. So I often hear very good things about them. Then it was thought, if these children are really this much good, so we need to assess them in front of everyone in the school. If they are really good, definitely this goodness will spread and everybody will be learning from them. Everybody will be becoming like them. अब कितने अच्छे हैं तो इनको असेस करते हैं, उसके लिए एक क्विज है. मेरे पास 21 बुक्स की लिस्ट है. These are 21 books which according to our librarians, that is शिवानी मैडम and अंजू मैडम, ये सारे बच्चों ने 21 किताबें पढ़ रखी हैं. तो उनके बारे में इनसे बात करते हैं. अलग अलग तरह की किताबें हैं. बुक्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. तो उनके बारे में इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे. और मुझे उम्मीद है ये सभी बच्चे, क्योंकि रीडिंग एंथुसियास्ट हैं, इन्होंने किताबों को अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, उनके बारे में इनसे चर्चा करते हैं. तो इन आवर फर्स्ट टीम वी हैव गुरनूर सिंह, सुप्रीत कौर एंड हरसीरत कौर. तो पहले इनसे बात करते हैं, फिर सेकंड टीम से, फिर थर्ड टीम से, फिर फोर्थ टीम से. आराम से बात करेंगे, ठीक है. तो ये किताब का नाम है टेल्स फॉर चिल्ड्रन. इसमें देयर इज अ वर्ड टेल्स. तो टेल्स का अर्थ बताएंगे सभी को क्या होता है? टेल्स, TALES, टेल्स फॉर चिल्ड्रन. माइक ऑन कर लो, सभी बच्चे अपना माइक ऑन करो. These are some stories. Very good. Tales means stories. Tales for children means stories for children. Very good answer. तो ये जो किताब है, इसमें what kind of stories are there? मतलब किस प्रकार की stories हैं? Moralable and valuable stories. Yes, value based stories
and the stories based on morality, जो नैतिकता के ऊपर कहानियां हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो बताएंगे जितनी भी कहानियां इस किताब में हैं, ऐसी कौन सी कहानी विच यू रियली फाउंड वेरी इंस्पायरिंग, सबसे अच्छी लगी, उसका नाम? हनी स्टक। हनी स्टक। Honey Stuck is the name of the story. Okay, tell them something about the story. In this story, there are two nuns that were in trouble that some criminals have to उन्होंने उनका घर लेना था क्योंकि वो उनका घर पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए वो एक प्लान करते हैं कि एक रूम में वो कॉटन भर देते हैं, एक में हनी भर देते हैं, जिसके कारण वो जब क्रिमिनल्स आते हैं उनके घर पर कब्जा करने, वो फर्स्ट रूम में जाते हैं, उनके ऊपर हनी लग जाती है और सेकंड रूम में उनके ऊपर कॉटन स्टक हो जाता है और बाद में जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें किसी को पता नहीं लगता कि जो कौन है, इसलिए वो उनका घर नहीं ले पाते। वेरी गुड। ये मॉरल स्टोरीज तो हैं ही, साथ में वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और बहुत अच्छे ढंग से सबने सुनाई। वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। व्हाट्स योर नेम? सुप्रीत कौर। सुप्रीत कौर, वेरी गुड। चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपकी ही टर्न है अभी। एक किताब है मदर टेरेसा के ऊपर। जब हम इन किताबों की बात करते हैं जो अलग अलग शख्सियतों के ऊपर होती हैं, द बुक्स विच आर देयर ऑन डिफरेंट पर्सनैलिटीज, तो व्हाट आर दीज बुक्स कॉल्ड? माइथोलॉजी। नो, सोच के जवाब दें, डिस्कशन के साथ जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट, द स्टोरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्सनैलिटीज, या बुक्स, सॉरी नॉट स्टोरीज, बुक्स विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्सनैलिटीज, what are those books called? जो किसी पर्सनैलिटी की जिंदगी के बारे में हमें बताते हैं, उनके आदर्शों के बारे में बताते हैं। बायोग्राफी। Yes, they are biographies. Pronunciation is biography. Biography. A biography, if suppose somebody writes about himself, अगर कोई अपने बारे में लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई दूसरा किसी के बारे में लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। राइट? तो अभी आपकी ही टर्न है। राइट? चलें, तो मदर टेरेसा के ऊपर आपने किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी। तो मदर टेरेसा के बारे में थोड़ा बताएंगे। मदर टेरेसा ने क्या काम किया अपनी जिंदगी में? She helps the poor and orphaned and the poor. तो उन्होंने गरीबों की मदद की। गरीबों की ही मदद की या कोई और व्यक्ति थे जिनको कुछ खास तरह की समस्याएं होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, उनको? The people who are homeless and selfless. The people who are homeless, the people who were the victims of leprosy, जिसको कोढ़ का शिकार कहते हैं, जिनके पास कोई नहीं जाता है, जिनके पास जाने से लोगों को बदबू आती है। तो मदर टेरेसा ने वेस्ट बंगाल में अपना एक आश्रम खोला। उस आश्रम में उन्होंने जो लेप्रेसी यानी कि कोढ़ से पीड़ित जो लोग थे उनका इलाज किया। उनको शी इज ए नर्स, वो एक नर्स हैं, उनका इलाज किया। और लोग ऐसे कहते थे कि भाई ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी माँ की गोद में, ऐसे कमेंट्स लोग करते थे कि ऐसा लगता है कि हम अपनी माँ की गोद में। ये मदर टेरेसा के बारे में लोग कहते थे। तो मदर टेरेसा ऑल्सो गॉट नोबेल प्राइज ऑफ पीस। कौन सा प्राइज मिला था उनको? नोबेल पीस प्राइज। कौन सा प्राइज? नोबेल पीस प्राइज। तो ये मदर टेरेसा के बारे में। अब नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके ऊपर भी आपने किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी। तो ये जो किताब है ये किस प्रकार की किताब है? मतलब अगर हम इसको यॉनर्स में देखें तो ये फिक्शन है, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, माइथोलॉजी है, फिलॉसफी है, किस प्रकार की किताब है? ऑटोबायोग्राफी। ये उनकी अपनी लिखी हुई किताब है? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। तो जो उन्होंने अपनी लिखी हुई किताब जो ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर कलाम की, उस किताब का नाम क्या है?
पिक्टोरियल नो ऑटोबायोग्राफी नो नो। देखिए, जब हम पढ़ते हैं, आप अब क्विज में आए हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। डॉक्टर कलाम ने जो ऑटोबायोग्राफीज लिखी है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। उसका क्या नाम है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो अपने ऊपर, अपनी जीवनी के ऊपर लिखा, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उस किताब का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। अब बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर कलाम की जीवनी लिखी है, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं? उसको क्या कहेंगे? बायोग्राफी। उसको क्या कहेंगे? बायोग्राफी। वो ऑटोबायोग्राफी नहीं है। दिस इज नॉट ऑटोबायोग्राफी, दिस इज बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी एक ही है और उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। राइट? ओके, चलें सेकंड टीम पे आते हैं। कोई परेशानी तो नहीं हुई? काफी कुछ सीख लिया। ठीक, चलें सेकंड टीम, अभी आपकी टर्न है। ये गुलिवर ट्रेवल्स, आपने किताब पढ़ी होगी, गुलिवर ट्रेवल्स। तो ये जो किताब है, ये किस प्रकार की किताब है? मतलब बायोग्राफी है, गुलिवर की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, फिक्शन है, किस प्रकार की किताब है? बायोग्राफी ऑफ गुलिवर। देखिए, जो बायोग्राफी होती है, एवरीबडी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितना कुछ देखिए सीखने को मिल रहा है। बायोग्राफी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ ह्यूमन बीइंग। बायोग्राफी हमेशा रियल लाइफ ह्यूमन बीइंग की होती है। गुलिवर नाम का कोई रियल लाइफ ह्यूमन बीइंग हुआ ही नहीं, तो इट इज नॉट ए बायोग्राफी, इट इज फिक्शन। ये फिक्शन है जो इमेजिनेशन के साथ एक किताब तैयार की गई, एक कहानी बनाई गई। दिस इज फिक्शन। तो जो भी किताब इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होती है, व्हाट इज दैट बुक कॉल्ड? फिक्शन। व्हाट इज इट कॉल्ड? फिक्शन। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ फिक्शन। तो कहानी तो पढ़ी, पता है कि नहीं पता है? पता है? चलें, इस कहानी में क्या है जरा सभी को बताएं। सर, इसमें गुलिवर नेम का पर्सन है जो एक दिन, वो बल्कि शिप सर्जन होता है, उसका प्रोफेशन था, वो शिप सर्जन था। एक दिन वो उसका जो स्टॉर्म में जो शिप है वो रेक्ड हो जाता है, और एक दिन वो शिप गेट्स wrecked means ship gets destroyed। और वो एक अननोन आइलैंड में पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि वो जो पीपल्स है वो बहुत स्मॉल है, और वो जो पीपल थे वो उसको एनिमी समझने लग पड़ते थे, क्योंकि उसकी जो साइज था वो बहुत लार्ज था। इसलिए उसको बांध देते हैं बस पहले रस्सियों से, और उस पर अटैक करने लग पड़ते हैं। लेकिन उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, उसको ऐसा लगता था कि वो अटैक नहीं कर रहे, उसको पिच कर रहे होते हैं। वो उसके ऊपर तीर भी चलाते हैं, देखो सारे एरोज जो है वो छोटे छोटे होते हैं, दे वेरी स्मॉल। गुड। तो आपको ये किताब इंटरेस्टिंग लगी? यस सर। तो आप चाहेंगे कि बच्चे पढ़ें? यस सर। तो इनको क्या मैसेज है कि ये किताब पढ़े? तो क्यों पढ़े? गुलिवर ट्रेवल्स के बारे में ये सभी बच्चे पढ़े तो क्यों पढ़े? व्हाई शुड दे रीड दिस बुक? सर, इससे हमारी इमेजिनेशन पावर भी इंक्रीज होगी, और बच्चे क्रिएटिव होंगे और क्रिएटिव होंगे, और इंटरेस्टिंग बुक है, मजा आता है। यस सर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक, और इसमें स्ट्रगल भी है। हु स्ट्रगल इज देयर? बिलीवर्स। गुलिवर स्ट्रगल। व्हाट मैसेज इज देयर? नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। इसमें गुलिवर जो है वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन जिस आइलैंड पे वो पहुंचता है वहां पर सभी छोटे छोटे इंसान हैं, मतलब 2-2 इंच के इंसान हैं, 3-3 इंच के इंसान हैं। तो वो 2-2, 3-3 इंच के इंसान भी जब आपस में मिल जाते हैं तो गुलिवर के ऊपर ओवर पावर कर लेते हैं, उसको कंट्रोल में कर लेते हैं। यानी कि कोई भी इंसान अपने आप को कमजोर न समझे। जब हम आपस में मिल लेंगे, जब मिल जाएंगे तो आगे कोई बहुत शक्तिशाली भी होगा तो उसके ऊपर भी काबू पाया जा सकता है, टफ समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। वेरी गुड। तो आगे एक पंजाबी की किताब की बात कर लेते हैं। ये किताब का नाम है नुस्खा। पढ़ी है आपने? नुस्खा।
इसके लेखक का नाम बताएंगे? लाल सिंह। वेरी गुड. Writer's name is Lal Singh and the name of the book is Nuskha. What is the name? देखिए, कल को ये किताब आपके सामने आए या कोई पूछे भाई कोई किताब पढ़ी है, कोई किताब का नाम पता है, तो नाम पता चल गया. What is the name? नुस्खा. नुस्खा. और राइटर का क्या नाम है? लाल सिंह. वेरी गुड. तो किताब के बारे में थोड़ी बताएं. कि इस कहानी में होते हैं कि जैसे एक पंजाबी की किताब है, पंजाबी में बताओ. कि जिਵੇਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਮੈਂ तेरी जगह ते बाहर खेतों में जाके काम करती फिर तू दसी कि कौन ज़्यादा मेहनत करता. तो फिर क्या होता है कि जिवें कि जिहड़ा पति है पति नूं जिस तरह कि सवेरे जिस तरह पति है जिहड़ी पत्नी है वो जिवें सवेरे खेतां वाल तुर पैंदी है कि अपने पति नूं चाह पिया के रोटी पानी छका के वो चली जाती है ते बाद विच पति हरे जदों पति उड़ जाता है तो उस ना फिर जिस तरह कि उन्हां दा बच्चा भी हुंदा है एक छोटा ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਜੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁਕਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਧਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਰਗੜਨ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ये जो इंसान है जो घर में रहता है उसको जो बच्चे की माँ का काम करना जब पड़ता है तो क्या बड़ी आसानी से कर लेता है? नो सर. मुश्किलें आती हैं. यस. थोड़ी के बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं तो बाद में उसे पछतावा होता है. यस सर. और जो मदर खेतों में जाके काम करती है वो कैसा महसूस करती है? वो तो कि जिवें वो जो खेतों में जाती है तो वो सोचती है कि वो किवें घर में काम करन दे उन्होंने परेशानी होंदी है कि जिहड़ा मेरा पति वो भी खेतों में बहुत मेहनत करता है. हाँ. सो हर एक का काम मेहनत मांगता है. जब तक हम अपने हाथों से काम नहीं करते हैं हमें हर एक का काम आसान लगता है, लेकिन वही काम जब हमें खुद करना पड़ता है तो पता चलता है कि ये कितना कठिन काम है. तो इस कहानी से ये पता चला कि भाई हर एक का काम अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है. जो मदर है जो घर को देखती हैं उनका काम भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और जो पापा हैं जो बाहर जाके काम करते हैं उनका काम भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसमें भी बहुत मेहनत करती है. तो अच्छा सीखने को मिला. हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठा है. हर एक इंसान अपनी जगह पर मेहनत कर रहा है तभी जिंदगी चलती है. मेहनत के बगैर जिंदगी चल सकती है? मेहनत के बगैर जिंदगी चल सकती है? बिल्कुल नहीं. ओके. तो अब आते हैं आगे. कहानी का मतलब किताब का नाम है हरदीप अते उसदी वहमन मां. ये पढ़ी है हरदीप अदे उसदी वहमन मां. तो ये वहम क्या होते हैं थोड़ा बताएंगे सर? अंधविश्वास. इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लाइंड फेथ. सुपरस्टिशंस. क्या बोलते हैं? सुपरस्टिशंस. राइट. तो इसमें हमने क्या सीखा कि वहम होने अच्छी बात है या खराब बात है? खराब बात है. वहम होने खराब. तो क्या वहम थे हरदीप की मां के? आप सभी जानना चाहते हैं बताएं. पंजाबी की किताब है. पंजाबी में जवाब दें. उसमें एक इंसान होता है एक मुंडा होता है जो वहमां भरमां विच नहीं पैंदा हाँ. पर उसकी मां जो होंदी है वो एक बाबे कोलों तमीज़ लैके आती है पर वो अपनी मां को इन्हां वहमां भरमां चों निकलने वास्ते कहता है. अब देखिए बाबा जी ने हमें बताया. हम कौन से बाबा जी का हमेशा हमने जन्म दिहाड़ा भी मनाया. किनका जन्म दिहाड़ा मनाया था?
गुरु नानक देव महाराज जी का, उनको हम बाबा जी कहते हैं ना, राइट। तो जब हम बाबा नानक को बाबा कहते हैं तो फिर किसी और को बाबा कहना चाहिए, हम कहना चाहिए? कोई और उस सम्मान का हकदार है? बिल्कुल नहीं है। ओके, लेकिन और बाबा नानक जी ने हमें ये बताया कि कभी भी वहमों भरमों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। 30,000 मील पैदल चले दुनिया भर में ये जानकारी देने के लिए कि वहमों भरमों से दूर रहना चाहिए, उनके आसपास नहीं भटकना चाहिए। फिर भी घर घर में बाबे हैं और वहाँ पर जाकर जो कुछ भी वो हमें देते हैं, जो कुछ भी हमें समझाते हैं, हम वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। ऐसा भविष्य में कौन कौन नहीं करेगा और अपने घर में किसी को करने भी नहीं देगा? बिल्कुल नहीं करने देना है, राइट। ये अच्छी बात नहीं है। हमें बाबा नानक पर भरोसा है। जो बाबा नानक ने हमें सिखाया हम उसके मुताबिक जिंदगी जिएंगे। ये जो घर घर में बाबे बैठे हुए हैं, हमें इनकी जरूरत क्या है? क्या है? बिल्कुल नहीं है। तो इनसे परे रहना है। तो ये किताब हमें यही सिखाती है। इस किताब का ऑथर कौन है, राइटर कौन है? वेरी गुड, भगवंत रसूलपुरी। वेरी नाइस, गुड प्रिपरेशन। चलें अब जरा तीसरी टीम की तरफ आते हैं, यंग ब्राउजर्स टीम सी। तो रस्किन बॉन्ड की कौन सी किताब पढ़ी आपने? रस्किन बॉन्ड हमारे देश के बहुत महान लेखक हैं और मसूरी में रहते हैं। मसूरी में रहते हैं, 90 साल के हो गए हैं और अभी भी खूब लिखते हैं और बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं। उनकी कई किताबें हमारे पास लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। यस, My walk about boys will be boys. रस्किन बॉन्ड की जो किताबें यहाँ पर मेरे पास जिनके टाइटल्स हैं उसमें ये नाम तो कहीं नहीं। यस, अभी जो नाम बोला फिर से बोलो। Boys will be boys. करेक्ट, बॉयज विल बी बॉयज बाय रस्किन बॉन्ड। तो व्हाट डू यू नो अबाउट दिस बुक? This is very humorous poem. So this is it poem or Story. story? This is story of humor. Humor का क्या मतलब होता है? Fun. हंसी मजाक। मतलब ये हमें हंसाने वाली, एंटरटेन करने वाली किताब है। ओके, तो ये जो किताब है लगभग कितने पेजेस की किताब है? अगर हम एक बार बैठे और इसको स्टार्ट टू फिनिश तक पढ़ना चाहें तो कितनी देर में फिनिश कर सकते हैं? अगर मन लगाकर पढ़े तो 2 आवर्स में भी पढ़ी जा सकती है, 1 आवर में भी पढ़ी जा सकती है। सो 2 आवर्स मैक्सिमम लगते हैं। 2 आवर्स मैक्सिमम लगते हैं और अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें तो 3 या 4 दिनों में किताब खत्म हो जाएगी, राइट। तो यहाँ जो 21 किताबें हैं इनमें हर किताब क्या 3 या 4 दिनों में खत्म की जा सकती है? आधा घंटा पढ़ें तो ये 3-4 दिनों में खत्म हो सकती है। तो कितना स्कोप है कि हम आधा घंटा भी रीडिंग करें तो 4 दिनों में एक किताब पढ़ लेंगे। कितनी वर्ड पावर बढ़ जाएगी। तो किताब पढ़ने से क्या फायदा होगा? आपने ये किताब पढ़ी, क्या फायदा होगा? कि हम उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधारना सीख सकते हैं और अपने एक्शंस पर वर्क कर सकते हैं। वेरी गुड, गुड आंसर, क्लैप फॉर हर, वेरी नाइस। जी, तो सुधा मूर्ति जी की कोई किताब पढ़ी? सर, महाश्वेता। वेरी गुड, महाश्वेता बाय सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी इज पद्म विभूषण अवार्ड विनर। कौन सा अवार्ड? पद्म विभूषण अवार्ड, जो हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सेकंड हाईएस्ट। सबसे टॉप तो भारत रत्न है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है दैट इज पद्म विभूषण। वो पद्म विभूषण सुधा मूर्ति जी को मिला है। शी इज मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑल्सो एंड शी हैज रिटन द बुक महाश्वेता। तो टेल अस समथिंग अबाउट द बुक। सर, इस बुक में एक गर्ल होती है नेम अनुपमा एंड शी इज अ थिएटर एक्ट्रेस एंड शी इज अ थिएटर एक्ट्रेस एंड शी डू द एक्ट ऑफ महाश्वेता and she is very beautiful and Dr. Anand fell in her love
and then they both get married, but she got leukoderma, a skin disease, and her mother-in-law think that this is a very Contagious disease, failing. Yes. and she think that this is not good for their family, and she sent back Anupama to their Anupama has to face a lot of struggle in her life. yes sir, So she faces the struggle in a bold manner. yes sir, Is she coward or brave? she is brave. She is brave. तो हमने कहानी पढ़ी, ब्रेवरी का पता चला, संघर्ष का पता चला, और ये जो घर में कई बार लेस एजुकेटेड पीपल हैं, उनको किसी बीमारी की पूरी जानकारी नहीं रहती है, ओके, तो कई तरह की गलत फहमियाँ वो बना लेते हैं. तो अगर हम पढ़े लिखे हों, पढ़ाई लिखाई की हो, तो फिर इस प्रकार की मिसकंसेप्शंस वी डू नॉट हैव. वेरी गुड, वेरी गुड. प्लीज क्लैप फॉर हर. तो बहुत अच्छे बच्चों ने अध्ययन किया, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत कुछ सीखा है. अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टीम से बात करते हैं. रस्किन बॉन्ड की कोई और किताब? टीम डी. All about the walkabouts. वेरी गुड. ऑल अबाउट माई वॉक अबाउट. वेरी गुड. तो व्हाट डू यू नो अबाउट दिस बुक? In this book, Ruskin Bond shared his experiences about traveling by walking. ट्रैवलिंग ऑन फुट. ट्रैवलिंग ऑन फुट. रस्किन बॉन्ड ने अपनी एक किताब जिसका नाम था द लैम्प इज लिट, उसमें ये लिखा है कि ऐसा लगता है कि आजकल के युग में लोग अपनी टांगों का इस्तेमाल करना ही भूल गए, कि पीपल हैव फॉरगॉटन टू मेक यूज ऑफ देयर लेग्स. थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे इट्स वेरी टफ फॉर अस. तो ये रस्किन बॉन्ड का कहना है. एंड ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग. इवन दो ही इज 90 years old, इवन देन ही वॉक्स. तब भी वो वॉक करते हैं. तो उन्होंने अपनी इस कहानी के बारे में, वॉकिंग के बारे में बात की है. 3000 Stitches. Who is the author of this book? 3000 Stitches. Sudhamurthy. Very good. Clap for her. 3000 Stitches is the book written by Sudhamurthy ji. What is this book all about? This book inspires us to enjoy every single moment. This book inspires us to enjoy in every stage of our life. Whatever challenges may be there, we should always stay happy. चढ़ती कला में रहना चाहिए. We should stay in high spirits. Very nice. Good. और ये एक किताब है The Sage with Two Horns. Who's the author? The Sage with Two Horns. Sudhamurthy. Sage with, very good, correct answer. Sudhamurthy is the writer. So what is this book all about? This book is all about that. This book is all about that even sages and kings can make mistakes, and if they walk on a path of enviness, and if they are very arrogant of their power, then they can also lose their power and their all the knowledge they have. So the point is this: anybody can make mistakes. Those who become arrogant, whatever powers they have, those powers disappear. जब हम घमंड करेंगे तो हमारे अंदर की जो भी शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी. Therefore, in Gurbani also written that we should always stay grounded. हमेशा जमीन के साथ जुड़े रहना चाहिए. तो हमने काफ़ी सारी किताबों का जिक्र किया. तो एक बार इधर फर्स्ट टीम, सेकंड टीम, एक एक सवाल सिर्फ, ठीक है? फर्स्ट टीम, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स. हु इज द ऑथर? Okay, Swami and his friends. Who's the writer? R.K. Narayan. R.K. Narayan, Swami and his friends. Very entertaining book. You all must go to the library and read this book by R.K. Narayan. Do you know the name of any other book written by R.K. Narayan? Malgudi Days. Malgudi Days, beautiful. R.K. Narayan, very nice. Very nice. Good. So I think that today we have learned a lot from all these 12 children. Big round of applause for everybody.
It is said about reading, those who read are the ones who lead. जो पढ़ते हैं वो लीड करते हैं. तो ये young leaders are there on the stage. All of them are reading and are learning a lot. They are ready to lead. और आगे दूसरों को लीड करेंगे. जो उम्मीद है कि जो बच्चे सामने खड़े हैं वो भी पढ़ेंगे और वो भी लीड करेंगे. Very nice, very good performance by all the students. Heartiest congratulations to everybody. Very nice. बहुत अच्छा लगा. और let us together sing one song. We have very good singer also here. आप वो song दे दीजिए. ये सब पकड़. सभी खड़े हो जाएं. Now the students who are there in the assembly ground, they should also sing. This is very old song. We used to sing it earlier. This song is a tribute to books. किताबों के प्रति हमारी श्रद्धा है इस गीत में जो हम मिलके गाते हैं. आपका माइक कहाँ गया? Yes. मेरा दोस्त मेरा मीत है मेरी किताब. मेरा दोस्त मेरा मीत है मेरी किताब. मेरा ज्ञान मेरा मान है मेरी किताब. मेरा ज्ञान मेरा मान है मेरी किताब. ये है मेरी प्रेरणा, ये है मेरी चेतना. ये मेरी संवेदना, ये मेरा स्वभाव. ये मेरी संवेदना, ये मेरा स्वभाव. ये किताब मेरी किताब. ये किताब मेरी किताब. ये किताब मेरी किताब. मेरी किताब. राह मुझको है दिखाती ये मेरी किताब. साथ मेरा है निभाती ये मेरी किताब. मेरा है निभाती ये मेरी किताब. आगे भी आगे ले जाती ये मेरी किताब. भी आगे ले जाती ये मेरी किताब. ध्यान मेरा है बढ़ाती ये मेरी किताब. बढ़ाती ये मेरी किताब. मेरी किताब. ये किताब मेरी किताब. ये किताब मेरी किताब. ये किताब मेरी किताब. सपना हर सच कर जाती ये मेरी किताब.
किताब, मेरी किताब।